Hello, good morning everyone, and welcome to the virtual storytelling. And I am the story queen, and we are doing this in partnership with our NGO partner Sahegami, which is based in Delhi. And today's theme is virtual storytelling, great stories that inspire young minds. So, welcome all of you, and this is a free session, and we are going to do lots of fun activities. We are going to start with ice breaking, and there'll be 3 stories that will follow up. Okay, so are you all ready? There is a live chat going on, so you can always type and send in whatever you want to. We'll respond to as many of you as much as possible. Okay, so now let us start with a very small, fun, ice breaking activity. So, in this activity, what we are going to do is first let us just rub our hands. Now, put this hand onto your eyes and relax your eyes. It will bring you to the moment. Everyone, if you're sitting in a class, if you're doing it all alone. Now again, keep closing your eyes, rub your hands, and gently keep your hands on your ears. Feel the warmth of your hands. Now again, gently rub your hand and put it on the back of your neck. Now slowly open your eyes. So I'm going to ask you some fun questions, and you can type or you can take the help from your teachers, write it down and keep typing the answer to those questions while we are narrating other stories and doing some other activities. So are you ready? Okay. So my first question to all of you, because you see, I think the age group is from 6 to 15 years. So my question to all of you is, what is that one thing that you want to become when you grow up? When you are like your mother and your father, what is that one thing that inspires you? That you want to become like that person? Maybe it can be a celebrity, or maybe it can be some community helper. So, my first question to all of you is, what do you want to become when you grow old? You can type down or ask your teachers to write it down on your behalf. Okay, so our first question is, what do you want to become? Our second question in this ice breaking activity is, which is your favorite meal? What do you like eating most? आपको सबसे ज़्यादा खाने में क्या पसंद है? आपको खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मेरा पहला क्वेश्चन था कि आप क्या बड़े होकर बनना चाहते हैं, और मेरा दूसरा क्वेश्चन है, आपको खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप अपने टीचर्स को दीजिए, और जो नीचे हमारा कमेंट का सेक्शन है उसमें आप कमेंट कर सकते हैं. नाउ मेरा तीसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका सबसे अच्छा फ्रेंड कौन है? आपका सबसे अच्छा फ्रेंड कौन है? क्या उनका नाम आप नीचे बता सकते हैं? So I am going to give you 5 seconds for this, and we'll take you just keep typing. My team will respond to you, and in another 1 minute I'll be back with all the stories for you. Okay? So keep typing and write down all the answers to these questions. Okay?
Okay, so I am back with all the 3 stories, and I think you have used this time to write down in comments about all those 3 questions which I have asked you earlier. And जो हमारी टीम है आपको रिस्पॉन्स देगी, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है हमारे लिए तो ज़रूर पूछिएगा वो क्वेश्चन. ओके, नाउ आज जो हम 3 स्टोरीज करने वाले हैं, आज हम हिंदी में ज़्यादा बात करेंगे क्योंकि हमारे जो ऑडियंस है और जो हमारे दर्शक हैं, हमारे जो पार्टनर हैं सहेगामी, वो दिल्ली से हैं और वहाँ पर ज़्यादातर हिंदी लैंग्वेज का यूज़ होता है. तो हम लोग आज हिंदी प्रयोग करेंगे और थोड़ी बहुत इंग्लिश भी करेंगे. ओके, तो हमारी जो आज 3 स्टोरीज़ हैं, पहली स्टोरी है मैनी हैंड्स मेक वर्क लाइट, यानी अगर बहुत सारे हाथ मिल जाएं तो काम आसान हो जाता है. हमारी दूसरी स्टोरी है नायरा द ब्रेव गर्ल, नायरा एक साहसी लड़की. और हमारी तीसरी स्टोरी है कम्युनिटी हेल्पर्स, डॉक्टर हीलिंग हार्ट. ओके, so let's do all the stories one by one. Now our first story is about a family, okay? And I have somebody with you here. This lady is very. Hello. Hi, who are you? I am Kamla and I am very happy to join you all for this storytelling session. Thank you. Hey, thank you Kamla, but why are you here? I want to tell you. What do you want to tell me? I am very blessed. Why? What happened, Kamla? I will show you what happened. Okay. So everybody, let's see what happened with Kamla. Are you ready, Kamla? Yeah. I am ready. Okay. So now the story starts with what happened at Kamla's place one day. Okay. Oh, I have got so much of work. I need to do so much of work. मुझे बहुत सारा काम करना है. मैं पहले रोटी बेलूं या पहले कुछ और करूं? आप लोग मुझे बताएंगे क्या? मैं पहले रोटी बेलूं या पहले नहाने जाऊं या पहले अपने बच्चे को कुछ खाने को दूं या फिर मैं पहले या मैं सब्जी लेने जाऊं पहले? कोई मुझे बताएगा मैं पहले क्या करूं? कमला, ये तो आप ही को पता होगा. ठीक है, मैं पहले ऐसा करती हूँ, रोटी बेलती हूँ और सबको नाश्ता देती हूँ, रोटी सब्जी या पराठा सब्जी. एंड कमला वो अपना काम करने लगी. लेकिन तब तक कौन आया देखना चाहेंगे? मम्मा कहाँ हो आप? क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? मम्मा, आज मेरा फुटबॉल मैच है और मैं चाहता हूँ कि आप दिन में 4 o'clock पे जरूर आइएगा, और अगर आप नहीं आए ना मम्मा तो मैं आपसे बहुत गुस्सा हो जाऊंगा. बेटा टिम्मू, घबराओ मत, मैं जरूर आऊंगी. ओके मम्मा, अब जल्दी से मेरा लंच बॉक्स दो, मैं जा रहा हूँ, बाय. ओहो, टिम्मू का लंच बॉक्स मुझे जल्दी देना चाहिए. और कमला ने टिम्मू का लंच बॉक्स बनाया और टिम्मू खेलने चला गया. थोड़ी देर बाद कौन आया आप देखना चाहेंगे? मम्मा. क्या हुआ बेटा? मम्मा प्लीज मेरे साथ ड्राइंग करो ना, प्लीज मम्मा. बेटा मैं बहुत सारा काम है, मैं सबके लिए नाश्ता बना रही हूँ, आपने नाश्ता भी नहीं किया, अभी आपको नाश्ता भी खिलाना पड़ेगा. मम्मा मुझे ड्राइंग करनी है. ओके बेटा, मैं करूँगी. अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें ना एक हॉबी क्लास में डलवाया है, चलो मैं तुम्हें छोड़ के आ जाती हूँ. चलो मम्मा, चलो बेटा, मैं तुम्हें छोड़ के आती हूँ. कमला ने अपनी बेटी पूजा को हॉबी क्लास में छोड़ा. फिर क्या हुआ? कौन आया? कमला कहाँ गई? कमला, मैं इधर उधर तब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ. ये कौन है? ये कमला की सासू माँ है. कमला, जी माँ बोलिए, क्या चाहिए आपको? कमला, मेरे पैर में बहुत दर्द है बेटा, थोड़ा जरा मालिश कर दो. हाँ जरूर, मैं जरा सबके लिए नाश्ता बना रही थी अम्मा, मैं उसके बाद आपका करूँ? कमला बहुत दर्द है, बहुत. चलिए अच्छा, पहले मैं आपका हाथ पैर में थोड़ा तेल लगा देती हूँ. हाँ चलो कमला. और कमला ने फिर उनके हाथ पैर में तेल लगाया. लेकिन तब तक क्या हुआ? कौन आ गया कमला के पास? कमला? हाँ बताइए. ये कमला के हस्बैंड है. कमला, मेरा ऑफिस का क्या बॉक्स तैयार है? कमला,
हाँ हाँ, ये लीजिए बॉक्स आपके हाथ में, और अब आप नाश्ता करिएगा और अच्छे से ऑफिस जाइए आराम से। ज़रूर। थैंक यू कमला, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। ओके, बाय बाय। बाय कमला। कमला बेचारी इतना थक गई थी, बहुत थक गई, कब नहाऊंगी। कमला के पास बिल्कुल भी सांस लेने का भी टाइम नहीं था, और ऐसा कमला के साथ हर दिन होता था। तब तक कमला के ससुर जी आए और उन्होंने कमला से क्या बोला? कमला बेटा। जी ससुर जी, बताइए। कमला, जरा मेरा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लेना, आज मुझे अपना दांत दिखाना है, बहुत ज़्यादा मेरे दांत में दर्द है कमला। ज़रूर ज़रूर, मैं आपका ज़रूर, अभी मेरा फ़ोन ज़रा ऊपर है कमरे में, मैं लेके आती हूँ, फिर मैं ज़रूर डॉक्टर का अपॉइंटमेंट बुक कर देती हूँ। ज़रूर कमला, थैंक यू थैंक यू। और कमला गई फ़ोन लेने ऊपर वाले कमरे में। फिर क्या हुआ, ज़रा फ़ोन लेके आती हूँ, उसके बाद मैं कुछ और काम करूँगी। कमला, ओए माँ, मर गई, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मेरा पैर में चोट लग गई। हाँ, कमला गिर गई सीढ़ी से ऊपर जाते वक्त, और सब लोग आए। अभी तो कमला के हस्बैंड भी बाहर नहीं गए थे। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? मेरे पैर में चोट लग गई, जल्दी बुलाओ कोई, कमला के हस्बैंड राजू को बुलाओ। राजू जी आए। क्या हुआ कमला, क्या हुआ? मेरे पैर में चोट लग गई। ओह, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, चलो, कोई बचाओ। कमला को डॉक्टर के पास जाना पड़ा, और फिर कमला का पैर टूट गया। 1 हफ्ते तक कमला जो है अस्पताल में रही। उसके बाद उसके पैर का जो प्लास्टर था वो 2 महीने तक था। अब आप बताइए, कमला तो सबकी हेल्प कर रही थी, अब कौन करेगा सारा काम जो कमला ने किया? आपके घर में भी तो लोग, आपके मम्मी पापा, आप लोग उनका हाथ बटाते हो क्या? फिर देखिए क्या हुआ, कमला वापस घर आई। कमला, तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारा पैर में फिर से थोड़ा सा मरहम लगा देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग केयर ऑफ मी, कमला सेड। कमला की सासू माँ आई। कमला बेटा। जी माँ, बेटा तुम आराम करो, मैं ऐसा करती हूँ, थोड़ा सा इडली और सांभर बना देती हूँ, सब लोग जो है नाश्ता आज वही कर लेंगे। धन्यवाद माँ, प्लीज़, थैंक यू। कोई बात नहीं बेटा, आप आराम करो। उनके ससुर जी आए। कमला बेटा, अभी आप कैसे फील कर रहे हो कमला? मैं ठीक हूँ ससुर जी। कमला बेटा, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप मुझसे बोलिएगा, कोई भी दवाई ख़त्म हो रही हो मैं आपका मंगा दूंगा स्टोर से। धन्यवाद, थैंक यू। उनके बच्चे आए। मम्मा, मैं आपसे हमेशा गुस्सा होता था कि आप मेरे फुटबॉल मैच में नहीं आते, लेकिन अब मैंने सोच लिया है, मैं आपसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होऊंगा। और मम्मा, आपको पता है, आज मैंने घर में झाड़ू भी लगा दिया, और अब से मेरा काम रोज़ है, मैं रोज़ घर में झाड़ू लगाऊंगा, ताकि आपको वो काम ना करना पड़े मम्मा। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। फिर कमला की बेटी आई, पूजा। उसने बोला, मम्मा, हाँ मेरा बच्चा, क्या हुआ? मम्मा, आज से मैं रोज़ खुद से खाना खाऊंगी, मैं आपके लिए वेट नहीं करूंगी मम्मा, उससे आपका काम थोड़ा कम हो जाएगा। ओह थैंक यू सो मच, आप कितना मेरा ख्याल रखते हो। उस दिन कमला को बहुत अच्छा लगा, आज मेरा बहुत अच्छा दिन है। मुझे ये समझ में आया कि मैं जो रोज़ इतना सारा काम करती थी, ज़रूरत आने पे मेरी फैमिली वाले मेरी बहुत हेल्प किए, इसलिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ। और यही इस कहानी में आप सबको बताना चाहती थी। तो आपने देखा कमला के साथ क्या हुआ, लोगों ने उसकी हेल्प की जब कमला को ज़रूरत थी, लेकिन क्या कमला का पैर टूटना चाहिए था? अगर लोग उसकी पहले से ही हेल्प करते, पूरी फैमिली उसके साथ पहले से ही खड़ी होती, तो शायद कमला का पैर टूटता ही नहीं। तो आप में से कौन कौन है जो अपने मम्मी पापा की हेल्प करते हैं? कमेंट में लिखिए। जो अपने नेबर्स की हेल्प करते हैं, कमेंट में लिखिए। जो अपने फ्रेंड्स की हेल्प करते हैं, जो अपने भाई बहनों की हेल्प करते हैं, जो अपने टीचर्स की हेल्प करते हैं, जो लोग हमारे लिए कुछ करते हैं, क्या हम उनके लिए कुछ करते हैं वापस, या सिर्फ हम लेते हैं? क्या हम उनको कभी कुछ देने की कोशिश करते हैं कि चलो इसने मेरे लिए खाना बनाया,
तो मैं कल इनके लिए कुछ और कर देता हूँ, चलो मैं इनका पैर दबाता हूँ, चलो मैं इनका सर दबा देता हूँ, कुछ भी, है ना। तो ये एक फर्स्ट स्टोरी थी हमारी, मैनी हैंड्स मेक वर्क लाइट। अगर बहुत सारे हाथ एक साथ आ जाएं तो किसी एक पे काम का बोझ उतना नहीं पड़ता, हर कोई जो है आराम से फिर रह सकता है। यहाँ पे कमला के साथ जो हुआ किसी के साथ ना हो। तो क्या आज से आप लोग अपने मम्मी पापा का, अपने टीचर्स का, अपने जितने भी लोग को आप जानते हैं उनकी हेल्प करेंगे, या फिर हम सिर्फ और सिर्फ आराम करेंगे? डिसीजन आपका है। इसीलिए ये एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है। हमारे घर पे जो भी लोग काम करने आते हैं, क्या हम उनकी हेल्प करते हैं किसी तरीके से? क्या हम उनको सही टाइम पे सैलरी देते हैं? ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। सही टाइम पे सैलरी अगर हम देंगे तो उनके यहाँ जो भी और लोग हैं उनको भी एक हेल्प मिलेगी। तो दिस वॉज आवर फर्स्ट स्टोरी ऑफ द डे, मैनी हैंड्स मेक वर्क लाइट। We'll take a short break of 1 minute. Please keep commenting. Let us know how did you like our first story, and we'll go back to our second story, Naira the Brave Girl. I'll take a short break from here, just 1 minute break, so that I can make the arrangements. Okay? Thank you. Okay, so I am back with our next story, Naira the Brave Girl. नायरा एक साहसी लड़की। लेकिन दूसरी स्टोरी पे जाने से पहले क्या आपने कुछ कमेंट करके हमें बताया? हमारा थोड़ा तो उत्साह बढ़ाइए। ये जान के हमें बहुत ही खुशी होगी कि आपको हमारा ये स्टोरी और ये सेशन कैसा लग रहा है। ये एक फ्री स्टोरी टेलिंग सेशन है एंड हम चाहते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट कैरेक्टर है उसका नाम है नायरा। नायरा एक गांव में रहती है और उस गांव में एक बहुत बड़ी खूबी है। उस गांव में एक डैम है और उस डैम के किनारे एक बहुत बड़ी सी झील है जिसमें डैम का सारा पानी सेव होता है। तो एक दिन क्या हुआ, नायरा रोज की तरह खेलने गई डैम के पास। नायरा को देखना है। हेलो, आई एम नायरा। तो नायरा एक दिन डैम के पास खेलने गई। उसके दोस्त भी थे। डैम के पास एक मैंगो ट्री था, आम का पेड़, और वहां पर बहुत सारे मैंगो निकले थे। नायरा ने सोचा चलो मैं जरा 3-4 मैंगो तोड़ के खाती हूँ। तो नायरा ने इधर से मैंगो तोड़ा, उसके फ्रेंड से बोला, हे नायरा, नायरू, गिव मी दैट, ये दो वो दो। सारे फ्रेंड्स रोज की तरह आराम से खेल रहे थे और मैंगो चूस चूस की गुठलियाँ इधर उधर फेंक रहे थे। फिर क्या हुआ, नायरा के फ्रेंड से बोला, नायरा शाम हो रही, चलो घर चलते हैं। नायरा ने बोला, थोड़ी देर में डैम पे बैठ के आराम से देखूंगी, इतना सुंदर है, मैं सनसेट देखने के बाद ही घर जाऊंगी। उसके फ्रेंड से बोला, अच्छा ठीक है। उसके फ्रेंड ने नायरा को बोला, बाय बाय, अच्छा तो कल मिलते हैं, फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे। वो लोग रोज ऐसे ही गाना गा के बाय बाय करते थे। तो नायरा के फ्रेंड्स चले गए। नायरा थोड़ी देर तक वहीं बैठी रही। तब तक ये क्या, अरे ये सुंदर सी गिलहरी कहाँ है? नायरा को एक गिलहरी दिखी और नायरा ने क्या किया, नायरा गिलहरी के पीछे 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 चलती जा रही थी और गिलहरी दौड़ती जा रही थी। करते 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 वो लोग एक गुआवा के पेड़ के पास पहुंचे और गिलहरी जो है फट से गुआवा के ऊपर चढ़ गई और गुआवा खाने लगी।
नायरा को ये देख के बड़ी हंसी आ रही थी। उसने देखा अरे ये गिलहरी तो बहुत ही क्यूट है भाई। लेकिन नायरा ने क्या देखा, अरे वो तो गिलहरी के पीछे 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 आते आते बहुत दूर चली गई अपने गांव से। तो नायरा ने सोचा चलो चलो जल्दी से मैं अपने वापस घर जाती हूँ, वैसे भी अंधेरा होने वाला है। लेकिन तभी नायरा ने देखा अरे ये क्या है, ये पानी कहाँ से आ रहा है। नायरा ने देखा ये पानी कहाँ से आ रहा है, मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा। क्या करोगी नायरा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। नायरा ने क्या किया, वहां पर एक बड़ा सा पत्थर था। उसने क्या देखा कि उस पत्थर के पीछे से पानी आ रहा है। नायरा ने पत्थर हटा के देखा तो पानी का बहाव और तेज हो गया। डैम में एक छेद हो गया था, एक होल हो गया था। नायरा ने सोचा अरे अगर मैं इसको कुछ भरूंगी नहीं किसी चीज से तो पानी तो पूरा विलेज की ओर आ जाएगा और विलेज में हर कोई डूब जाएगा। नायरा ने सोचा मुझे अपनी बुद्धि जल्दी ही लगानी चाहिए। और नायरा ने क्या किया, वो बड़ा सा पत्थर बड़ी मुश्किल से उठा के रखा और उसको दबाए रखी ताकि पानी रुके रहे, पानी ना आए। फिर नायरा ने सोचा कि शायद अब पत्थर जो है टिक गया है। तो नायरा ने अपना हाथ वहां से हटाया, लेकिन फिर से पत्थर हट गया और पानी का बहाव और तेज हो गया। नायरा ने सोचा मुझे तो यहाँ सीमेंट लगाना पड़ेगा, जब तक सीमेंट नहीं लगाऊंगी शायद पत्थर ना रुके। नायरा ने क्या किया, वहीं पे बहुत सारी मिट्टी थी, ठीक है, उसने मिट्टी में पानी मिलाया और पत्थर लिया और बहुत सारा सीमेंट उसके चारों ओर लगाया और सोचा कि चलो थोड़ी देर इसको ऐसे पकड़ के बैठती हूँ, शायद फिर क्या होगा, पानी रुक जाएगा और ये मिट्टी जो है जम जाएगी, फिर मैं किसी को गांव से बुला के लाऊंगी विलेज से। अब नायरा पकड़ के बैठी रही, पूरी बेचारी का कपड़ा भी गीला हो गया था क्योंकि इतने सारा तो पानी उसके ऊपर आ रहा था। लेकिन नायरा डरी नहीं, उसको लगा क्या हुआ, कुछ देर की तो बात है, कपड़े ही तो गीले हुए हैं, क्या हुआ, कुछ बात नहीं। लेकिन अगर मैंने ये पत्थर छोड़ दिया तो ये डैम टूट जाएगा और पूरा विलेज डूब जाएगा। नायरा पत्थर पकड़ी रही, सोची अब कोई आएगा, शायद अब कोई आएगा। करते करते रात के 9 बज गए। नायरा के मम्मी पापा भी बहुत ज़्यादा परेशान थे कि कहाँ गई नायरा। उन्होंने उसके फ्रेंड्स को बोला तुम लोगों ने नायरा को देखा क्या कहीं। हाँ आंटी अंकल, वो तो हमारे साथ डैम पे थी, लेकिन उसने बोला कि वो अभी घर आ जाएगी जैसे ही शाम होगी। पूरा गांव जो है नायरा को ढूंढता रहा, लेकिन नायरा तो अपने गांव से दूर आ गई थी गिलहरी का पीछा करते करते। किसी को भी नायरा नहीं मिली रात में। नायरा भी बहुत थक गई थी, वो अभी तक पत्थर पकड़ी ही रही। पूरी रात हो गई, नायरा को अलग अलग जानवरों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। माय गॉड, देयर वर सो मेनी एनिमल्स। कोई भी नायरा पे अटैक कर सकता था। नायरा थी तो सिर्फ 8 ही साल की, सिर्फ 8 साल की थी, लेकिन नायरा ने धैर्य नहीं छोड़ा और पत्थर को पकड़ी रही। करते करते सुबह हो गई। नायरा के मम्मी पापा रात भर नहीं सो पाए क्योंकि नायरा घर ही नहीं आई थी। अगले दिन सुबह एक दूध वाला दूध की बाल्टी लेके गांव से बाहर की ओर जा रहा था। तब तक उसने देखा अरे ये कौन लड़की है जो यहाँ डैम के पास ऐसे बैठी हुई है, कहीं ये नायरा ही तो नहीं है जिसके मम्मी पापा उसको कल रात से ढूंढ रहे हैं। उसने बुलाया नायरा तुम हो क्या बेटा। नायरा ने बोला अंकल मैं ही हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ अंकल, मेरी हेल्प करिए। दूध वाले ने देखा कि क्या करे। दूध वाले ने बोला नायरा बेटा तुम थोड़ी देर और रुको, मैं सारे गांव को बुला के लाता हूँ। दूध वाला जल्दी अपनी साइकिल फिर चलाया और गांव की ओर गया। उसने तुरंत वहां गांव वालों को बताया कि क्या हुआ है, नायरा वहां पत्थर पकड़ के खड़ी हुई है। उस सारे गांव वाले दौड़ के आए, उसके मम्मी पापा ने उसको उठाया और फिर क्या था, नायरा ने उनको उठाया और बोला ये। और फिर उसके बाद नायरा ने अपनी मम्मा को हग ही किया और बोला कि मम्मा थैंक गॉड यू आर हियर, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए मम्मा प्लीज़। उसकी मम्मा उसके लिए वाकई में कुछ खाने के लिए तुरंत खिलाया। कुछ लोगों ने उसको पूरा पोछा, तुरंत उसको नए कपड़े पहनाए गए और गांव के जितने भी मिस्त्री थे, जितने भी लोगों थे, उन्होंने पूरा उस पत्थर को सील किया और everybody clapped for Naira. Can we also clap for Naira, all of us? Yes, very good. और सबने बोला
नायरा द ब्रेव गर्ल, आवर हीरो नायरा। ये साहसी लड़की हमारी जाबाज लड़की है हमारे गांव की। और गांव के जो मुखिया थे, जो सरपंच थे, उन्होंने नायरा को साहस का पुरस्कार दिया। नायरा की ये जाबाजी, ये साहस वो दूर दूर तक अखबारों में छपी, क्योंकि उसने एक गांव को डूबने से बचाया था। कम से कम 5,000 लोगों को डूबने से बचाया था नायरा ने, एक छोटी सी 8 साल की लड़की ने। और ये बात किसी ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी बताई, और नायरा को प्रेसिडेंट का अवार्ड मिला एक साहसी गर्ल होने का। तो आप सब में वो नायरा है, मेरे अंदर भी वो नायरा है। लेकिन क्या हम उतने साहसी हैं? क्या हम उतने जाबाज हैं? ये हमें सोचना पड़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि हम सब के अंदर किसी के लिए कुछ करने की एक ललक होनी चाहिए। और वो इंस्पिरेशन, क्योंकि हमारा ये सेशन इंस्पिरेशनल स्टोरीज फॉर यंग माइंड है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही होता है। हम पहला कदम लेने में डरते हैं, लेकिन अगर आपने पहला कदम ले लिया तो आप हमेशा जीत आपकी ही होगी। तो घबराइए नहीं, हम सब लोग एक ही रास्ते पर हैं। और अभी आप लोग जो 7 से 15 साल के लड़के लड़कियां हैं, चाहे आप लड़के हों या लड़की हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम सब के अंदर एक दिलेर व्यक्ति है। तो चलिए हम लोग अब मूव ऑन करते हैं अपनी स्टोरी नंबर 3 पर। लेकिन वहाँ पर जाने से पहले मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपको हमारी पहली 2 स्टोरीज़ मैनी हैंड्स मेक वर्क लाइट एंड नायरा द ब्रेव गर्ल कैसी लगी। अपने टीचर्स, फ्रेंड्स और जो लोग यहाँ पे अकेले बैठ के सुन रहे हैं स्टोरी, वो ज़रूर हमें लिखें, हमारा प्रोत्साहन करें, हमारा उत्साहवर्धन करें। हम बहुत ही ज़्यादा आपके कृतज्ञ होंगे। एंड नेक्स्ट 3rd स्टोरी पर मूव ऑन करने से पहले we'll take a short break of 1 minute. So don't leave this channel. Be here. Okay, see you. Okay, so welcome back for our 3rd story and hope you have commented for our first 2 stories. And this story is Community Helper Dr. Healing Heart. Okay, तो ये एक बच्चे की कहानी है जिसका नाम था राजू। ठीक है, राजू जब छोटा बच्चा था तो वो हमेशा से डॉक्टर बनना चाहता था, क्योंकि उसकी जो माँ थी वो बहुत ही बचपन में गुजर गई थी और उसने देखा कि वो कितने पीड़ा में उनका बीता समय जब वो बीमार पड़ी। तो राजू ने सोचा कि अगर शायद मैं डॉक्टर होता तो मैं अपनी माँ की हेल्प कर पाता। तो इसीलिए राजू ने सोचा कि मैं बड़े होके डॉक्टर बनूंगा। ठीक है, तो 20 साल बाद राजू ने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छे से पढ़ाई की और उसका मौलाना आज़ाद कॉलेज में एडमिशन हो गया, जो कि हमारे दिल्ली में ही है। राजू एक बहुत अच्छा डॉक्टर बना और सब लोग बहुत ही अच्छे से उसको प्यार से बोलते थे डॉक्टर राजू, डॉक्टर हीलिंग हार्ट। इन 2019 क्या हुआ कि एक वायरस ने हम सब पे अटैक किया। 2020 एक्चुअली। I am the coronavirus and I will not leave anyone. हम सब को कोरोना वायरस ने बहुत परेशान किया। आप लोग को याद है कोरोना ने कितना हमें परेशान किया था? सबके स्कूल बंद हो गए थे, ऑफिस जाना बंद हो गया था, कुछ भी नहीं, हर कोई घर पे था, नो शॉपिंग, नो मॉल, कहीं पे घूमना सब बंद हो गया था। तो उस वक्त क्या हुआ कि कोरोना वायरस का एक फ्रेंड भी था
वो जो है एनिमल्स में उसने तहलका मचा दिया। सब एनिमल्स जो है, क्योंकि राजू जो थे वो एनिमल्स के डॉक्टर बने एक्चुअली बड़े हो गए। तो एक दिन एक पैरट आया। आई एम वेरी वेरी सिक, कैन somebody help me, डॉक्टर हीलिंग हार्ट, राजू कहाँ है कहाँ है? तो राजू की एक नर्स थी, उन्होंने बोला पैरट से, पैरट डोंट वरी, डॉक्टर हीलिंग हार्ट विल कम एंड हेल्प यू। प्लीज जरूर बुलाइए नर्स, मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हाँ हाँ जरूर जरूर, जाओ रेस्ट करो। तो ऐसे एक एक करके बहुत सारे एनिमल्स आए, ठीक है। फिर उसी दिन सेम डे एक डक भी आई, और डक ने क्या बोला, क्वाक 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 क्वाक, छो छो। क्या हुआ? मुझे बहुत सारी बीमारी लग रही है, मैं सांस भी नहीं ले पा रही हूँ, क्वाक क्वाक क्वाक। ओके, डॉक्टर हीलिंग हार्ट विल कम एंड हील यू। ऐसे ही फिर बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे और भी जानवर आए। एक दिन एक पैंडा भी आया, और पैंडा ने बोला, डॉक्टर हीलिंग हार्ट कहाँ है, प्लीज उनको बुलाओ, मैं बहुत बीमार हूँ, मेरा तो सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। हाँ जरूर, तुम भी रेस्ट करो। पैंडा भी रेस्ट करने चला गया। अब डॉक्टर हीलिंग हार्ट को उनकी नर्स ने बताया कि इतने सारे पेशेंट्स आए हैं और सब लोग बहुत ज़्यादा आपसे चाहते हैं कि आप उनको ठीक करिए। डॉक्टर हीलिंग हार्ट ने बोला, हेलो, आई एम डॉक्टर हीलिंग हार्ट, आप लोग कैसे हैं? हाँ, मैं सबको हील करता हूँ, क्योंकि मैं एक बहुत अच्छा डॉक्टर बना, बहुत सारी पढ़ाई लिखाई करके, और लोगों ने मुझे नाम दे दिया। वैसे तो मेरा नाम डॉक्टर राजू है, लेकिन लोगों ने मुझे नाम दे दिया डॉक्टर हीलिंग हार्ट। मैं काफ़ी खुश हूँ इस नाम से। सर, क्या हुआ नर्स? सर, बहुत सारे पेशेंट आए हैं, एक पैरट आया है, एक डक आया है, और एक पैंडा आया है, वो चाहते हैं कि आप उनको ठीक करें। क्या हुआ है उनको नर्स? सर, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, वो लोग सांस ही नहीं ले पा रहे सर, लग रहा है कोई नया वायरस आया है। नया वायरस? ये तो ठीक बात नहीं है, मुझे कुछ तो सोचना पड़ेगा। ठीक है नर्स, चलो वार्ड में देख के आते हैं। डॉक्टर हीलिंग हार्ट और नर्स वार्ड में उनको पेशेंट्स को देखने गए, तो उन्होंने क्या देखा कि एक नया वायरस, कोरोना वायरस का भाई पोरोना वायरस आया है, जो कि एनिमल्स को अटैक कर रहा है। डॉक्टर हीलिंग हार्ट ने बोला, इसका तो कोई इलाज नहीं है, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। डॉक्टर हीलिंग हार्ट रात में जब वो सो रहे थे, वो सो नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो अपने पेशेंट्स को इस कंडीशन में देख नहीं पा रहे थे। ही वॉज अ वेरी वेरी कंपैशनेट डॉक्टर। डॉक्टर हीलिंग हार्ट ने बोला, मैं क्या करूं? वो ऐसे ही शीशे में गए, अपना चेहरा देख रहे थे, अपना मुंह धो रहे थे डॉक्टर हीलिंग हार्ट। और जब उन्होंने अपना आँख खोली, एक हैलो ऑफ लाइट उनके किनारे था, and there was a fairy, and the fairy said, Dr. Healing Heart, I am blessing you with supernatural powers. आपके अंदर अलौकिक शक्तियां आ जाएंगी, जो कि आपको ऐसी ऐसी पावर देंगी कि आप सबको, ना सिर्फ जानवरों को बल्कि इंसानों को भी ठीक करने की आपके अंदर पावर आ जाएगी। डॉक्टर हीलिंग हार्ट वाज शॉक्ड। हैं? ऐसा कैसे हो जाएगा? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? तो फेरी ने बोला, आप सपना नहीं देख रहे हैं, मैं यहीं पे हूँ आपके सामने डॉक्टर हीलिंग हार्ट, ये देखिए। डॉक्टर हीलिंग हार्ट वॉज वेरी हैप्पी, एंड परी ने उनको एक, पता है क्या चीज दिया? He became a superhero. Actually, that was the day when he started to be known as a Dr. Healing Heart. He got a flying cape. Do you see this? His flying cape. Zoom. He can fly. So now, that fairy told him that around this whole city of Delhi, एक बहुत बड़ा सा रिंग ऑफ वायरस आ गया है, और वो रिंग ऑफ वायरस को किसी को तो मारना पड़ेगा, तभी ये एनिमल्स ठीक होंगे। डॉक्टर हीलिंग हार्ट ने क्या किया? ब्रूम 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 वो करके ऊपर हवा में उड़े, और उड़ के उन्होंने पूरा सर्कल लगाया दिल्ली का, और देखा अच्छा ये है रिंग ऑफ वायरस। और उन्होंने उनका जो स्टेथोस्कोप था
इसमें से एक लिक्विड निकल रहा था, मैजिकल लिक्विड विच वॉज मल्टी कलर्ड एंड स्पार्कली। उन्होंने वो पूरा लिक्विड उस पूरे रिंग पे डाल दिया। और वो जितने भी वायरस थे सब मर गए। एंड ये जो सारे हमारे एनिमल्स थे वो अचानक से ऐसे किए, Hello, I am the parrot and I am fine now. Bye bye. और ऐसे ही जो हमारी डक थी वो भी बहुत खुश हो गई और उसने बोला Quack quack, I am fine and bye. और ऐसे ही जो हमारे पांडा थे उन्होंने बोला हो हो, I am hearty and hairless always and I'm very very fine now. Thank you to Dr. Healing Heart. Thank you doctor. Bye bye. Dr. Healing Heart was very happy, and from that day onwards, everybody got to know about Dr. Healing Heart and his magical powers. But actually, he did not show his magical power to everyone. At day, he was a very normal doctor, and at night, he would become the magical Dr. Healing Heart. So, all of you, being a doctor is such a good profession. We can help so many people, and all the doctors are an inspiration for all of us. Like that, all the teachers help us in becoming doctors in the future. They are also our community helpers. And you know, all the police people who help us in keeping bad elements at bay, जो हमारी हेल्प करते हैं हर तरह के चीज़ों में, तो हमारे जो पुलिस वर्कर्स हैं वो भी हमारे कम्युनिटी हेल्पर्स होते हैं। हमारे हेयर ड्रेसर, हमारे जो वेजिटेबल मैन होते हैं, हमारे जो बहुत तरह के कम्युनिटी हेल्पर्स होते हैं। और हमारे समाज में हम चाहे कोई भी काम करें, अगर मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ तो उसमें भी कोई ना कोई, मैं शायद किसी के दिमाग में कुछ अच्छी बात जाए तो वो भी मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ। तो हम सब, हमारे अंदर एक अच्छाई है। एज ह्यूमन बीइंग हमको भगवान ने, अल्लाह ने, सब ने हमको एक बहुत अच्छी अच्छाई खूबी दी है। तो हमको वो अच्छाई को भूलना नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ जो हमारी ज़िंदगी में है वो है एक अच्छा इंसान बनना, फॉर ह्यूमैनिटी, एंड हमें एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना। अगर हम वो बन गए और दूसरों की हेल्प किए तो इससे बड़ा शायद कोई काम दुनिया में नहीं है। Since this was a story session for young minds, inspirational story, I hope आप सबको हमारी तीनों कहानियाँ पसंद आई होंगी। हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपको कैसी लगी। प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा। और कभी भी कोई हैदराबाद आए, आई एम बेस्ड इन हैदराबाद, इफ़ यू वांट आई कैन ट्रैवल टू दिल्ली ऑल्सो। एंड हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, हमारा यूट्यूब चैनल है। आप हमको @thestoryqueen1 इंस्टाग्राम and @thestoryqueen on YouTube, and you can also email us thestoryqueen1@gmail.com. and सहेगामी, आपको तहे दिल से धन्यवाद। और हम बहुत ही अच्छा लगता है आपके साथ सेशंस करने में। तो ज़रूर हम सब एक साथ फिर से कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। एंड बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शब खैर, प्लीज़ टेक केयर, बाय।